Hi students, how are you? Now today I'll do the third sum of the company share. So इस sum में calls in advance, forfeiture, reissue, and we have to prepare the ledger account and ledger account of calls in area and calls in advance. Okay? चलो, first I'm reading out the sum. So Aryaman and Khaitan Limited issued 10,000 shares at the rate of rupees 10 per share at a premium of rupees 20% payable as follows. Rupees 3 on application, rupees 6 on allotment including premium, that is 20% of 10, that is 2 rupiah, that is 4 plus 2. 4 actually face value and 2 rupiah premium. 2 on first call, so 6 plus 3 9 plus 2 11 and balance on final call, that is rupee 1. Okay? Company received the application of 15,000 shares. Excess shares are immediately refunded. Company received all the money up to final call except one shareholder, Mr. Bagla, holding 1,000 shares, failed to pay the allotment money. On his failure to pay the first call, his shares are immediately forfeited by the company. However, another shareholder, Ruchila, holding 500 shares, paid the entire amount along with allotment. That is, calls in advance. That is, allotment का साथ वो first call and final call money एक साथ में दे दिया, entire amount. That is calls in advance. Share issue expenses of the company came to rupees 2,000, which will be written off against share premium. Share issue expenses is the capital loss and share premium is the capital income. So capital income का साथ capital loss का adjustment करने के लिए बोल दिया sum में. एक बार ISC में this sum आया था, तो इसका हम यहाँ पे जोड़ दिया. Now after that, company reissued 600 shares of Bagla. Out of the 1,000 forfeited shares, only 600 shares of Bagla are reissued at a discount of 10%, fully paid up. Prepare journal entries, calls in area account and calls in advance account. Very easy. हम लोग ट्राई करता है. Let us do the sum. पहले ही हम लोग calls in area कितना अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल निकाल देता है. बाद में हमको सुविधा होगा. तो calls in area WN1 calls in area on allotment. This is very easy sum because एक ही आदमी फेल किया था. कितना? 1,000 share. How many shares? That is 1,000 share failed to pay. So 1,000 shares taken by Bagla. Allotment money fail कर दिया. Calls in area always including premium ही होता है. So 1,000 into 6. Calls in area always premium including होता है. Without premium नहीं होता. 6,000. Now calls in area on first call. कितना? 1,000 into very simple 2 रुपया. That is 2,000. हो गया. calls in area का पार्ट खत्म. Then share forfeiture में कितना अमाउंट आएगा हम सम करते करते एक बार समझा देता है. ओके. सो आई विल स्टार्ट द जर्नल एंट्रीज. ओके. ओके. चलो फर्स्ट जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. एप्लीकेशन में हमको कितना शेयर का पैसा मिला. व्हेनेवर मनी इज रिसीव्ड बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड. बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड. किसका पैसा मिला? एप्लीकेशन का मनी मिला. इसलिए जर्नल इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. दो यहाँ पे 10,000 के लिए शेयर इशू किया था बट कंपनी हैज एक्चुअली रिसीव्ड 15,000 शेयर. तो 15,000 into 3 45,000 का पैसा मिल गया.
45,000 being application money received. Second entry, this amount actually to be transferred to the capital account, and excess jitna more than 10,000 has to be transferred to, has to be refunded immediately, because company cannot accept more than the shares what the company has actually issued by the company. So share application money जब ट्रांसफर करेगा, journal is share application account debit to बैंक रिफंड कर दिया, एग्जैक्टली अपोजिट एंट्री, क्योंकि जब पैसा मिला तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, रिफंड हुआ तो जस्ट अपोजिट एंट्री टू बैंक अकाउंट, दैट इज हाउ मच, इट इज 5,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा मिल गया, 5,000 इंटू 3, 15,000 बैंक में चला गया, एंड एप्लीकेशन में जितना क्रेडिट था उतना ही डेबिट होगा, बिकॉज वी हैव टू कैंसिल द एप्लीकेशन का लेजर अकाउंट, एंड टू ultimately this is transferred to share capital, to equity share capital account. जितना शेयर इशू किया था उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है, 10,000 to 3 that is 30,000. इसका बाद कंपनी सब लोग को अलॉट कर दिया, तो अलॉटमेंट मनी विल बी रिसीव्ड. Whenever allotment money received, but from the second entry, company first give the notice to the shareholders, so please give your allotment money, your shares are allotted. तो allotment money due, that is allotment money जब ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, what is the journal entries? Share allotment account debit to share capital, and in this some premium also there, so to SPR will also be there. तो journal is share allotment account debit, share allotment account debit to share equity share capital and to securities premium reserve. शेयर अलॉटमेंट में कंपनी शेयर अलॉटमेंट मनी कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम द एप्लीकेशन. पहले ही अलॉटमेंट मनी को ट्रांसफर करेगा, देन पैसा मिलेगा. फर्स्ट कॉल के लिए फर्स्ट कॉल मनी ट्रांसफर करेगा कैपिटल में, देन पैसा मिलेगा. फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर करेगा, देन फाइनल कॉल का मनी रिसीव होगा. तो पहले हम लोग ट्रांसफर कर देता है, पहले सेकंड एंट्री देन फर्स्ट एंट्री. तो शेयर अलॉटमेंट में कितना चाहिए हमको? शेयर अलॉटमेंट में चाहिए दैट इज 10,000 शेयर्स इंटू अलॉटमेंट में हमको पूरा 6 रुपया चाहिए, 60,000 रुपीज, एंड इट विल बी ऑब्वियसली इंक्लूडिंग प्रीमियम ही सबको देने के लिए बोलेगा. इसमें से असली अमाउंट दैट इज फेस वैल्यू दैट इज 10,000 इंटू असली अमाउंट 4 विल गो टू द कैपिटल अकाउंट. कैपिटल में कभी ज्यादा पैसा नहीं जाएगा, ओनली फेस वैल्यू जाता है. एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जितना प्रीमियम है 10,000 इंटू 2 20,000 तो चला गया. तो कंपनी का क्या कर दिया? अलॉटमेंट मनी ड्यू, सबको नोटिस दे दिया, प्लीज गिव योर अलॉटमेंट मनी, वी आर ट्रांसफरिंग योर मनी टू द कैपिटल अकाउंट, एंड कंपनी इज कंफर्म, तो सब लोग से पैसा मिल जाएगा. पर देखा इसमें एक आदमी बागला होल्डिंग 1,000 शेयर्स फेल टू पे द मनी. तो जर्नल इज अभी पैसा मिल रहा है, पैसा मिलने का टाइम में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट होना चाहिए, बिकॉज अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट में जितना डेबिट था उतना ही क्रेडिट होगा, क्योंकि अलॉटमेंट अकाउंट को कैंसिल करना पड़ेगा. लेकिन पैसा मिलने का टाइम में बागला होल्डिंग 1,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसको बोलता है कॉल्स इन एरियर. कंपनी का नहीं मिला कॉल्स इन एरियर, दैट इज लॉस ऑफ ए कंपनी बोल सकता है, और बैंक भी अमाउंट कम हो जाएगा. तो कॉल्स इन एरियर कितना है? 1,000 शेयर्स इंटू पहले हम लिखा था 6, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट 6,000, तो 6,000 लिख देता है डायरेक्टली. तो आउट ऑफ द 60,000 6,000 इज नॉट रिसीव्ड, therefore 54,000 इज एक्चुअली हैज बीन रिसीव्ड. एंड कंपनी बागला को और एक बार चांस दिया फर्स्ट कॉल के लिए. तो अगेन फर्स्ट कॉल मनी जब ड्यू, तो फर्स्ट कॉल मनी जब ड्यू होता है, अगेन सेम फॉर्मूला, अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू और फर्स्ट कॉल मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, शेयर
share first call account debit to share capital account. तो share first call account debit to share capital account. share first call में share first call account debit to share capital account. तो फर्स्ट कॉल में कितना, अगेन 10,000 शेयर इनटू फर्स्ट कॉल में ₹2 करके बोला था, 2 तो 20,000. जब फर्स्ट कॉल मनी मिल रहा है, अगेन बागला हैज नॉट पेड हिज मनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, सेम एप्लीकेशंस, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन. इसमें हम लोग मिस्टेक कर दिया, बैंक यहाँ पे जो अमाउंट मिल रहा है टू कॉल्स इन एडवांस भी है, तो टू कॉल्स इन एडवांस हमको लिखना पड़ेगा व्हेनेवर एलोकेटेड मनी इज रिसीव्ड. तो यहाँ पे लिख देता एक बार, टू कॉल्स इन एडवांस. जब टू कॉल्स इन एडवांस कितना, व्हाट इज द कॉल्स इन एडवांस? कॉल्स इन एडवांस इज कितना, वो लिया था कौन, रुचिला, होल्डिंग 500 शेयर्स, पेड द एंटायर अमाउंट अलोंग विद अलॉटमेंट. तो रुचिला का कॉल्स इन एडवांस दैट इज 500 शेयर्स लिया था, वो फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल मनी 2 + 1 दैट इज ₹3 एडवांस दे दिया, ₹1,500. एंड टू शेयर अलॉटमेंट में तो जितना डेबिट उतना क्रेडिट होगा ही, 60,000 बेसिकली 1,500 बैंक बैलेंस, 1,500 एक्स्ट्रा मिल जाएगा बैंक में, कितना 55,500 61,500 या फिर 61,500. ओके, तो जर्नल जब कॉल्स इन एडवांस मिल गया, तो जर्नल इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. ओके, उसमें हम लोग मिस्टेक कर दिया था. चलो ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000. जब मिल रहे तब बागला अगेन फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट calls in advance also debit, calls in advance account debit. calls in advance उस टाइम में क्रेडिट था, क्योंकि 1,500 पहले मिल गया, किसमें, इसमें 1,000 रुपया का और इसका 500 रुपया, तो पूरा 1,000 रुपया का कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा. आउट ऑफ द 1,500 में जो है, इसमें से 1,000 ऑफ द कॉल्स इन एडवांस ओनली will be adjusted here in the calls in advance account debit, क्योंकि वो पैसा पहले मिल गया था, क्रेडिट था पहले, अभी डेबिट हो रहा है. क्रेडिट यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस क्यों होता, कॉल्स इन एडवांस इज अ लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी, देयरफॉर इट इज क्रेडिटेड. सिंस कॉल्स इन एडवांस मनी पहले ही मिल गया था, यहाँ पे इसको कैंसिल करने का, कितना, वही 1,000 शेयर्स, सॉरी 500 शेयर्स इंटू 2, मतलब फर्स्ट कॉल का 500 इंटू 2. कॉल्स इन एरियर कितना, कॉल्स इन एरिया में जाएगा वही 1,000 शेयर्स बागला का इनटू, यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया था हम लोग 2 करके 2,000. हम लोग पहले ही कॉल्स इन एरिया कैलकुलेट कर लिया था शेयर अलॉटमेंट में, कॉल्स इन एरिया. और बैंक में देखता है कितना, 2 शेयर फर्स्ट कॉल पहले लिख देता है, इजी हो जाता है. टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में कितना जाएंगे, जितना शेयर फर्स्ट कॉल में डेबिट तो उतना ही क्रेडिट होगा. उसमें से 2,000 नहीं मिलेगा और 1,000 तो पहले ही मिल गया था, तो इसलिए 3,000 कम मिलेगा, तो 17,000 रुपीज हमको एक्चुअली मिला. नाउ इसका बाद मेन एंट्री इज द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. शेयर फॉरफीचर में क्या आएगा, अभी शेयर फॉरफीचर, अभी क्या आएगा इसमें, शेयर फॉरफीचर. Forfeiture means cancellation. Means profit of a company.
forfeiture means cancellation, forfeiture means profit of a company. तो कैंसिल कर रहा है क्या मतलब, वो ये बागला आफ्टर द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड, तो इसलिए उसका नाम पे जितना कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ था अभी डेबिट होगा। एसपीआर फॉरफिचर में था, अलॉटमेंट में था, वो पैसा भी नहीं मिला, दैट विल बी डेबिटेड, क्योंकि एसपीआर ऑलवेज क्रेडिट होता है, कैंसिल करने के लिए डेबिट। तो जर्नल करता है, व्हाट इज द जर्नल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर कितना कैसे होता है लिख देता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, since the premium is not received hence cancelled, since the premium is not received hence cancelled, hence it is security premium is cancelled। एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम अगर मिल जाएगा वो कभी कैंसिल नहीं होगा, सिंस बागला हैज फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड उसका साथ ही प्रीमियम है, therefore it will be cancelled। सिक्योरिटी प्रीमियम it was credited at the time of due for security premium, now it is cancelled because of the forfeiture। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना सिक्योरिटी प्रीमियम था बागला का था 1000 शेयर्स इंटू 2 रुपया का प्रीमियम था, पूरा 2000 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल होगा। शेयर कैपिटल में कितना डेबिट होगा, एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स up to call made। The number of shares forfeited into face value of shares up to call made। How many shares are forfeited? That is 1000 shares into after which call it is forfeited? 3 plus यहाँ पे 4, 7 plus यहाँ पे 2, 9। That is 9 rupees up to face value, up to this face value is 9। So 9 will be cancelled, or 10 minus 1 face value 9, so 9 rupees will come here, 9000 share capital account debit 9000, okay। 9000 will be here, जिसमें डेबिट लिखा उसका साइड में लिखेगा 9000। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 जितना कॉल से ले रहा डेबिट था उस आदमी का उतना ही क्रेडिट होगा, कॉल्स इन एरियर एंड 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ओके। सो 2 कॉल्स इन एरियर, उस आदमी का जितना कॉल्स इन एरियर टोटल था, टोटल 8000 कॉल्स इन एरियर था, तो 8000 विल बी क्रेडिटेड। तो 9 plus 2 11, 11 minus 8, that is 9 plus 2 11, 11 minus 8, 3000 will go to the share forfeiture account। नाउ हमको एग्जाम में कन्फर्म होने के लिए इसको चेक करके देखना पड़ेगा, दिस 3000 इज राइट और रॉन्ग, क्रॉस चेक करके देखता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रॉस चेकिंग, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड excluding premium, that is the actual formula। हम लोग जब भी फॉरफिचर अकाउंट आएगा हम लोग इसको चेक करके देखेंगे हमेशा। तो कितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव फ्रॉम दिस पर्सन, 1000 शेयर्स इनटू एक्चुअली इस आदमी से क्या मिला था,
he failed to pay the allotment and first call. That is only 3 rupees on application मिला था, only 3. That is application money. This 3000 is checked. This is cross check हो गया. जो we are confirmed that our answer is right. Okay, and therefore in this way we will check every time when there is a forfeiture account balance. Okay, forfeiture का बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपनी फाइनल कॉल किया तो लेट्स डू द फाइनल कॉल. तो फाइनल कॉल एंट्री हम लोग एक बार कर लेते हैं. तो हम लोग कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है. इसको काट देता है एक बार. शेयर फाइनल कॉल, दैट इज द लास्ट एंट्री. शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, एक बार इसमें फाइनल कॉल अकाउंट टर्न लेता है. नाउ शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. क्योंकि शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, तो ऑलवेज शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ड्यू टू शेयर कैपिटल, दैट इज फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ये भी हो सकता है. तो शेयर फाइनल कॉल मनी कितना 1000, 10,000 माइनस 1000 बागला का छोड़ दिया. सो मैक्सिमम विल कॉल 9000 शेयर होल्डर को, क्योंकि 1000 को और कॉल नहीं करेंगे. सो 9000 शेयर होल्डर रिमेनिंग, उसको कॉल करेंगे फाइनल कॉल देने के लिए 1 करके. सो दिस इज 9000. And the last entry, share final call money received. तो journal is again पैसा मिलेगा तो always बैंक अकाउंट डेबिट ही होता है. बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट. इसमें कॉल्स इन एरियर का चांस नहीं, लेकिन जो कॉल्स इन एडवांस था वो ये 1,500 रुपया कॉल्स इन एडवांस था ना. 1,500 में 1000 रुपया कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे एडजस्ट हो गया. तो रेस्ट ऑफ द कॉल्स इन एडवांस दैट इज 500 to 1, 500 रुपया यहाँ पे एडवांस एडजस्ट होगा. calls in advance account debit to share final call. Share final call account. बैंक डेबिट calls in advance account debit to share final call account. तो शेयर फाइनल कॉल में कितना जाएगा, जितना डेबिट था उतना ही जाएगा. उसमें से कॉल्स इन एडवांस उसका 500 शेयर का फाइनल कॉल मनी एडवांस पहले मिल गया था, उसका पेड क्या था अभी डेबिट हो रहा है. सो 8500 विल बी एक्चुअली मैक्सिमम अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल. इसके बाद मेरा 2 एंट्री बचा है, रीइश्यू करेंगे एंड रीइश्यू करेंगे एंड वो क्या चीज़ है, जस्ट रीइश्यू करेंगे. तो रीइश्यू का पहले हम लोग एक बार कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल लेता है, क्योंकि मेरा जर्नल यहाँ पे है, फिर इसको हम डिलीट कर देगा. ठीक है, तो इसका कॉल्स इन एरियर अकाउंट एक बार खोल लेता है एंड कॉल्स इन एडवांस एक बार खोल लेता है रीइश्यू का पहले. चलो कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल लेता है इतना एंट्री से, बाद में हम लोग रीइश्यू करते हैं. तो कॉल्स इन एरियर इज ए डिफिकल्ट पार्ट, इसलिए कॉल्स इन एडवांस एरियर एक बार कर लेते हैं. कॉल्स इन एडवांस एक बार पहले कर लेते हैं, सबसे इजीएस्ट पार्ट. हमको बोला था कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एक बार कर लेता है. कॉल्स इन एडवांस अकाउंट पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर कॉल्स इन एडवांस करता है एंड देन फाइनल कॉल करेगा. कॉल्स इन एडवांस में कैसे होगा, तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, ये वाला पहले दैट इज 1500. तो कॉल्स इन एडवांस में बाई बैंक होगा, बाई बैंक अकाउंट. ठीक है, तो कितना मिला बैंक से 1500 रुपया. एंड बाद में दिस 1500 आई एडजस्ट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल. तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट and to share final call. फर्स्ट कॉल में 1000 कॉल्स इन एडवांस एंड फाइनल कॉल का कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस टू फाइनल कॉल
दैट इज 500। स्टूडेंट लोग को कभी कभी डाउट होता है, सर कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, तो शेयर फाइनल कॉल में सब लोग 9000 लिख देता है क्योंकि वो देख रहा है शेयर फाइनल कॉल 9000। एक्चुअली व्हाट इज दिस अकाउंट? दिस इज अ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। दिस इज अ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। इसमें कॉल्स इन एडवांस का ही अमाउंट आएगा। कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे 1000, सो हियर 1000 ही आएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल, आई हैव रिटन टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल इज 27 देख रहे हैं, बट जब कॉल्स इन एडवांस में लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस का ही अमाउंट लिखेगा, दैट इज 1000 रुपीज आई हैव टू राइट। नेवर विल राइट टू शेयर फर्स्ट कॉल बोल के जो दिखा रहा है यहाँ पे 20000। सो यहाँ पे भी कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल देख रहे हैं तो 9000, बट आई हैव टू राइट टू शेयर फाइनल कॉल 500 ही लिखेगा क्योंकि दिस इज कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन अकाउंट में कॉल्स इन एडवांस का ही अमाउंट लिखेगा, तो 1500 मेरा दोनों साइड टैली हो गया। Okay, now the difficult part is a calls in area. Difficult is calls in area account. Calls in area जब करता है तब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बहुत सारा झमेला हम देखा स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम फेस करता है। एक बार कॉल्स इन एरिया अकाउंट खोल लेता है, ओके, तो कॉल्स इन एरिया अकाउंट खुलता है, फिर हम लोग फॉर फ्यूचर एंट्री पास करेंगे, रीइश्यू एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता है कॉल्स इन एरियर अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉल्स इन एरियर देख के लगता है इजी, बट एक्चुअली किसी किसी स्टूडेंट का बहुत टफ लगता है। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर कहाँ पे देख के लग जाएगा? यहाँ पे एक कॉल्स इन एरियर है, तो व्हाट इज द कॉल्स इन एरियर? इट इज 2000 एक बार, और यहाँ पे भी और एक तो कॉल्स इन एरियर कितना? कॉल्स इन एरियर यहाँ पे एक तो 6000 है। टोटल कॉल्स इन एरियर यहाँ पे 6000। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर, जैसे अलॉटमेंट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल। कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट कितना? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट आएगा 6000। हमको अगेन यहाँ पे 6000 इज द कॉल्स इन एरियर, सो आई हैव टू राइट कॉल्स इन एरियर अकाउंट में 6000 ही, लेकिन वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट है, तो अलॉटमेंट के अगेंस्ट में 6000 कॉल्स इन एरियर, सो आई हैव टू राइट 6000। एंड कॉल्स इन एरियर अगेंस्ट द शेयर फर्स्ट कॉल, इट इज कॉल्स इन एरियर, दिस इज अगेन 2000। तो टोटल कॉल्स इन एरियर यहाँ पे 2000, तो 2000 ही हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कॉल्स इन एरियर जितना कॉल्स इन एरियर डेबिट क्रेडिट सेम होना चाहिए। नाउ कॉल्स इन एरियर और कहाँ देख रहा है? एक जगह कॉल्स इन एरियर था, दो जगह, तो यहाँ पे देख रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, ये टू कॉल्स इन एरियर। बॉक्स देख के दिखाता है दिस कॉल्स इन एरियर को, ठीक है, एंड एक ही जगह में। तो टोटल कॉल्स इन एरियर यहाँ पे 8000 है। तो 8000 जो कॉल्स इन एरियर है, इसका अगेंस्ट में हम देखा दो डेबिट है, एक का अगेंस्ट में एक क्रेडिट होने से हम लोग को बहुत इजी हो जाता है, बट यहाँ पे एक का अगेंस्ट में दो क्रेडिट दो डेबिट, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है हम लोग को राइट करने के लिए। तो हम लोग बोलता है यहाँ पे जो कॉल्स इन एरियर है 8000, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर 8000 ही लिखना पड़ेगा। तो टू कॉल्स इन एरियर, सो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल and by SPR is also debited, securities premium reserve, very difficult part। तो we know that कॉल्स इन एरियर is consists of always उसमें प्रीमियम हो सकता है, तो इसमें कॉल्स इन 8000 में प्रीमियम का अमाउंट कितना? इट इज 2, दैट इज 2000 इज प्रीमियम का कॉल्स इन एरियर कैंसिल होगा, और बाकी जो कॉल्स इन एरियर है 6000 वो असली अमाउंट कितना? यहाँ पे 4 रुपया असली अमाउंट, और यहाँ पे 2 रुपया, 4 रुपया प्लस 2 रुपया, दिस 4 प्लस 2 6 रुपया कॉल्स इन एरियर इज अगेंस्ट द इक्विटी शेयर कैपिटल, इसलिए 4 प्लस 2 6000 विल कम हियर। तो यहाँ पे जो 8000 कॉल्स इन एरियर है अगेंस्ट द प्रीमियम कॉल्स इन एरियर 2000, और शेयर कैपिटल का अमाउंट में 6000 है, तो टोटल कॉल्स इन एरियर इज 8000, बोथ साइड्स इक्वल हो गया,
तो सबको इसमें बहुत डिफिकल्ट होता है। क्या करेंगे जो 8 नाउ हमको रीइशू करना है। यहाँ पे रीइशू का छोड़ दिया था, उसका पहले हम लोग कॉल्सन एरियर एंड कॉल्सन एडवांस कर लिया था लेजर अकाउंट, क्योंकि लेजर करने के लिए हमको जर्नल का हेल्प चाहिए, तो जर्नल देख के हम लोग लेजर बना लिया था। ना यहाँ पे जो फॉरफीचर का बाद हम लोग को रीइशू करना चाहिए था फाइनल कॉल का बाद। तो रीइशू मतलब वो जो बागला का जो 1000 शेयर फॉरफिटेड हुआ था, उसका बाद ये जो 1000 शेयर फॉरफिट करके कंपनी का 3000 रुपया प्रॉफिट हुआ था, ना इसको रीइशू कर रहा है। कितना में रीइशू कर रहा है? कंपनी रीइशूड 600 शेयर्स ऑफ बागला एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 600 शेयर एट ए डिस्काउंट 10%, मतलब 10 का 10% मतलब 1 रुपया 9 रुपया में रीइशू कर रहा है। तो जर्नल इज बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। लॉस में रीइशू कर रहा है इसलिए फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्योंकि रीइशू का मेकअप करना पड़ेगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में ऑलवेज फेस वैल्यू जाएगा, चाहे तुम डिस्काउंट में रीइशू करो और प्रीमियम में। ओनली 600 शेयर्स आर रीइशूड, 600 shares, it will be always face value, that is 600 into 10, 6000 will go to the capital. बैंक में 600 शेयर्स और 9 रुपया करके इशू हुआ 5400, एंड जो लॉस हुआ एक कितना लॉस हुआ 600 into 1, 600 रुपया लॉस, एंड कंपनी ओन माइंड टू रीइशू द शेयर्स एट सर्टेन लॉस, क्योंकि कंपनी उसका प्रॉफिट करके 3000 रुपया प्रॉफिट हुआ था। तो 3000 रुपया प्रॉफिट हुआ था, मतलब एक शेयर से 3 रुपया प्रॉफिट था, तो कंपनी 1 रुपया में लॉस में इशू करने के लिए रेडी है, क्योंकि कंपनी कैन रीइशू दिस शेयर्स एट ए मैक्सिमम लॉस ऑफ ₹3 पर शेयर, बिकॉज 3 रुपया पर शेयर प्रॉफिट हो गया था, इसलिए 3 रुपया मैक्सिमम लॉस में रीइशू कर सकता है। हम 600 रुपया में लॉस में रीइशू कर दिया। आफ्टर द रीइशू ऑलवेज जो एक्स्ट्रा पैसा रिमेनिंग इन द फॉरफीचर अकाउंट दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना? हमको 600 शेयर से, तो सॉरी यहाँ पे 1000 शेयर से मेरा प्रॉफिट था 3000 प्रॉफिट था, इन द फॉरफीचर अकाउंट में प्रॉफिट था 3000। अब 600 का तब कितना होगा? तो एक शेयर से एक बार इमीडिएट मेथड भी कर सकता है और शॉर्टकट मेथड तो है ही एक बार। तो एक शेयर से फॉरफीचर बैलेंस 3000 बाई 1000, तो 600 शेयर से फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस कितना? 3000 बाई 1000 इंटू 600, 1 2 3 दैट इज कितना रहा है? 3000 बाई 1000 इंटू 600, तो कितना रहा है? 1800। और शॉर्टकट में हम कर सकते हैं 600 इंटू पर शेयर, मेरे को 3 रुपया प्रॉफिट था, दैट विल ऑल्सो बी पॉसिबल टू फाइंड, दैट इज इजीएस्ट वे। नहीं तो यूनिटरी मेथड जिसको इजी लगेगा यूनिटरी मेथड भी कर सकता है। तो 1800 रुपया मेरा 600 शेयर प्रॉफिट करके मेरा 1800 रुपया प्रॉफिट है। तो लेस लॉस ऑन रीइशू इस 600 शेयर लेस लॉस ऑन रीइशू। 600 शेयर रीइशू करके कंपनी का लॉस हुआ 600 रुपया एक करके, तो 600, तो 1200 रुपया स्टिल there remains profit in the forfeiture account for these 600 shares which will be transferred to capital reserve। तो कैपिटल रिजर्व में कितना चला गया? 1200 रुपया। ओके, नेक्स्ट और 2 एंट्री है इस सम में, बिकॉज लास्ट में हम एक बार 1-2 एंट्री जोड़ दिया था। शेयर इशू एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, शेयर इशू एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी came to ₹2000 which will be written off against share premium account। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना था उसका जर्नल क्या हम लोग जानता है, जो कोई भी एक्सपेंसेस है एक्सपेंसेस के लिए जर्नल ऑलवेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और पैसा चला जाएगा तो बैंक। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस ऑलवेज एक्सपेंसेस इज डेबिट एज पर द गोल्डन रूल्स। शेयर इशू
expenses account debit to bank. This is a capital loss. बैंक अकाउंट मतलब वन टाइम एक्सपेंसेस इट इज अ फिक्टिशियस एसेट्स उसको बोलता है. कितना आ रहा है शेयर एक्सपेंसेस 2000 रुपीज. एंड द लास्ट एंट्री दिस शेयर इशू एक्सपेंसेस. कंपनी का ऑलरेडी सिक्योरिटीज में रिजर्व में पैसा है, उसी सिक्योरिटीज में रिजर्व से वी कैन राइट अप एनी कैपिटल लॉसेस. हियर शेयर इशू एक्सपेंसेस इज द कैपिटल लॉस, उसको हम राइट अप कर देता है क्योंकि जो पैसा रहेगा तो इनकम में ही रहेगा, प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट में ही रहेगा. तो इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस. शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना अकाउंट दिस 2000. So remaining security minimum reserve जितना बचा है, whole of this security minimum reserve will go to the reserve and surplus in the balance sheet. Okay, thank you.